Now we will discuss about photosynthesis. Photosynthesis means photo means light and synthesis means formation of a compound in the presence of light or with the help of light is called photosynthesis. Photosynthesis is a process in which energy poor, inorganic, oxidized molecules or compounds are converted into energy rich, reduced organic compounds by sunlight captured by chlorophyll and other photosynthetic pigments. सो फोटोसिंथेसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एनर्जी पुअर का क्या मतलब है? एनर्जी पुअर का मतलब है लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी बिकॉज ऑफ देयर स्मॉल साइज होने की वजह से मींस उसमें उनमें जो है वो लेस नंबर ऑफ बॉन्ड्स होंगे, जितने बॉन्ड्स कम होंगे उतनी स्टोर्ड एनर्जी भी कम होगी, सो दे आर एनर्जी पुअर एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स. इनऑर्गेनिक मींस they don't have carbon and hydrogen together in the same molecules. So in this case we have molecule of carbon dioxide and water. These are energy poor inorganic oxidized molecules. ये दोनों oxidized molecules हैं as both of them contain oxygen and they are small in size, therefore they possess less amount of energy and they are inorganic because you can see that carbon dioxide में carbon है, hydrogen नहीं है, and water में जो है वो hydrogen है, carbon नहीं है. That is why both these compounds are inorganic and they combine together with the help of energy, light energy that is captured by chlorophylls and is converted into energy rich organic and reduced compound called glucose, or in general it is called carbohydrate. So this is a glucose and you can see that it is a energy rich compound as it contains many bonds as compared to carbon dioxide and water, and it is reduced as it contains hydrogen, and also organic because it contains both carbon and hydrogen atoms with the release of ऑक्सीजन. इसमें ऑक्सीजन रिलीज होती है साथ में. अगर इस इक्वेशन को बैलेंस किया जाए इट वुड बी लाइक 6 molecules of carbon dioxide react with 12 molecules of water and produce 1 molecule of glucose with 6 molecules of oxygen plus 6 molecules of water. So in this equation, carbon dioxide, water and light are reactants, while water, oxygen and glucose are products. Water, oxygen and glucose are products in this reaction, but oxygen is a byproduct, glucose is the main product, and water जो है वो दोनों साइड्स पे अपीयर हो रहा है. इस रिएक्शन में अगर नोटिस करें तो वाटर रिएक्टेंट भी है और वाटर जो है वो प्रोडक्ट भी है. So water appears on both sides of equation because it is used as a reactant in some reactions and released as product in others. इस equation को simplify करें तो it would be like this. So this is the simplified form of photosynthetic equation. Photosynthesis is exactly the opposite process of respiration. फोटोसिंथेसिस में हमने देखा कि कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर कंबाइन करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड दे फॉर्म ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन इज रिलीज्ड एज बाय प्रोडक्ट. In case of respiration, glucose is oxidized with the help of oxygen and is converted into carbon dioxide, water with the release of energy that is converted in ATP. So you can see that this is the exactly opposite process of photosynthesis. Differentiate करें अगर photosynthesis और respiration को, photosynthesis is a light capturing process. इसमें sunlight को capture किया जाता है और उसको store किया जाता है in the form of glucose.
while in case of respiration it is एनर्जी रिलीजिंग प्रोसेस। इसमें ग्लूकोज में स्टोर्ड एनर्जी को कन्वर्ट किया जाता है एटीपी में और इस एटीपी को यूज किया जाता है डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करने के लिए। फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो है वो रिएक्टेंट्स के तौर पे यूज होते हैं, जबकि रेस्पिरेशन में कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर आर रिलीज्ड एज प्रोडक्ट्स। ग्लूकोज और वाटर जो है वो फोटोसिंथेसिस में प्रोडक्ट्स हैं, बट इन केस ऑफ रेस्पिरेशन ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन are reactants. Photosynthesis occurs only during daytime because it requires sunlight. तो ये सिर्फ जो है वो डे टाइम में होती है। While on the other hand, respiration occurs all time. Respiration जो है वो हर वक्त हो रही होती है। Photosynthesis occur in some organisms like all plants, algae, and some bacteria, which include cyanobacteria. While on the other hand, respiration occurs in all living organisms. It occurs at all time in all living organisms, unlike photosynthesis. At dawn and dusk, rate of photosynthesis is low. सूरज गुरूब होते हुए और सूरज तुलू होते वक्त क्योंकि लाइट इंटेंसिटी जो है वो बहुत कम होती है, इस वजह से रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस भी स्लो होता है। एंड एट दैट पॉइंट रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इक्वल हो जाता है रेट ऑफ रेस्पिरेशन के। डॉन एंड डस्क पे लाइट इंटेंसिटी लो होने की वजह से फोटोसिंथेसिस का रेट स्लो हो जाता है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन की जो एवोल्यूशन है वो कम होती है, इवॉल्व ऑक्सीजन कम होती है, जिसकी वजह से रेस्पिरेशन का रेट भी स्लो हो जाता है बिकॉज रेस्पिरेशन रिक्वायर्स ऑक्सीजन एंड दैट ऑक्सीजन इज इवॉल्व ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। डॉन एंड डस्क में रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस कम हो जाता है, जिससे रेट ऑफ रेस्पिरेशन भी कम हो जाता है, एंड बोथ दीज प्रोसेसेस इनका रेट जो है वो इक्वल हो जाता है। एंड दिस कंडीशन इज कॉल्ड कंपनसेशन पॉइंट। Compensation point is the time when there is no net exchange between leaves and atmosphere, and it is termed as compensation point, and at that point rate of photosynthesis becomes equal to rate of respiration. Intake of carbon dioxide and water. Reactants जो हैं वो photosynthesis के दो हैं, carbon dioxide and water, and one is the light energy that is obviously coming from sunlight. कार्बन डाइऑक्साइड की बात की जाए तो इट इज डिराइव्ड फ्रॉम एयर। एयर से ये डिराइव होती है, या फिर जो डायरेक्टली उस ऑर्गेनिज्म में रेस्पिरेशन का प्रोसेस हो रहा होता है वहां से जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है उसी कार्बन डाइऑक्साइड को यूज कर लिया जाता है इन फोटोसिंथेसिस। वाटर प्लांट्स की अगर बात की जाए, दे गेट वाटर फ्रॉम सोइल ऑल्सो एज वाटर वेपर्स फ्रॉम एटमोस्फेयर. So these are the sources of carbon dioxide and water for photosynthetic organisms. The next concept is about evolution of oxygen. During photosynthesis, when carbon dioxide and water combine together, they form glucose and oxygen. Now the question is that ये जो oxygen है that is used as byproduct in photosynthesis, ये कहाँ से आती है? As you can see that oxygen is present in both reactants. कार्बन डाइऑक्साइड में भी ऑक्सीजन मौजूद है, वाटर में भी ऑक्सीजन मौजूद है। सो इस ऑक्सीजन का ओरिजिन कहाँ से होता है, कार्बन डाइऑक्साइड से या वाटर से? सो टू एक्सप्लेन दिस फिनोमिना, a scientist named as Niels gave an hypothesis that is called Niels hypothesis. Niels hypothesis के according, the oxygen that is released during photosynthesis is derived from water. उसने कहा कि जो ऑक्सीजन फोटोसिंथेसिस के दौरान रिलीज होती है वो बेसिकली रिएक्टेंट्स में से वाटर से ओरिजिनेट की जाती है, वाटर से सेपरेट की जाती है। इसने एक्सपेरिमेंट्स किए, एक्सपेरिमेंटेशन थी इसकी ऑन बैक्टीरिया, और ये ऐसे बैक्टीरिया थे जो फोटोसिंथेटिक तो थे बट दे डोंट रिलीज ऑक्सीजन एज अ बाय प्रोडक्ट। नील्स हाइपोथेसिस ने बैक्टीरिया के ऊपर जो है वो एक्सपेरिमेंट्स किए, और ये ऐसे बैक्टीरिया थे जो फोटोसिंथेसिस के दौरान ऑक्सीजन रिलीज नहीं करते थे बट दे यूज कार्बन डाइऑक्साइड एंड आल्सो फॉर्म कार्बोहाइड्रेट।
सो कार्बन डाइऑक्साइड भी यूज कर रहे हैं और उससे कार्बोहाइड्रेट जो है वो प्रिपेयर हो रही है, लेकिन ऑक्सीजन रिलीज नहीं कर रहे। इट मीन्स दैट कार्बन डाइऑक्साइड से ऑक्सीजन नहीं रिलीज होगी। कार्बन डाइऑक्साइड में मौजूद जो कार्बन एंड ऑक्सीजन है दैट आर द कंपोनेंट्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट। इसलिए इसने हाइपोथेसाइज्ड किया कि ऑक्सीजन जो है वो बेसिकली ओरिजिनेट होती है वाटर से। लेटर ऑन इन 1940s कुछ दूसरे साइंटिस्ट ने भी इसकी हाइपोथेसिस के ऊपर वर्क किया और उन्होंने भी एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म किए। उन्होंने ऑक्सीजन का एक ट्रेस यूज किया दैट इज ऑक्सीजन 18। इसको यूज किया इस प्रोसेस में टू determine that whether this oxygen comes from carbon dioxide or from water। दो तरह के एक्सपेरिमेंट्स यहाँ पे किए गए। एक्सपेरिमेंट नंबर 1, इसमें उन्होंने कार्बन डाइऑक्साइड यूज की विद द ऑक्सीजन 18। ऐसी कार्बन डाइऑक्साइड यूज की जिसमें जो ऑक्सीजन थी दैट वाज ट्रेस ऑक्सीजन, ऑक्सीजन 18, एंड सप्लाई वाटर दैट वाज विद ऑक्सीजन 16। और रिजल्ट्स इसके ये थे कि जो कार्बोहाइड्रेट प्रोड्यूस हुई है उसमें जो ऑक्सीजन है दैट वाज ऑक्सीजन 18, एंड वो ऑक्सीजन जो बाय प्रोडक्ट के तौर पे यूज हुई है दैट वाज ऑक्सीजन 16। So it was the same oxygen that was present in water। So फर्स्ट एक्सपेरिमेंट से ही जो है वो इस बात का पता चलता है कि ये जो ऑक्सीजन इवॉल्व हो रही है दैट इज कमिंग फ्रॉम वाटर। इन द सेकेंड एक्सपेरिमेंट they use carbon dioxide with oxygen 16 and water which was with oxygen 18, and when they react them together the result were कार्बोहाइड्रेट में मौजूद ऑक्सीजन जो थी वो ऑक्सीजन 16 थी, बट ऑक्सीजन दैट वाज रिलीज्ड एज बाय प्रोडक्ट वाज oxygen 18। So it was confirmed that this oxygen that is released as byproduct during photosynthesis is basically coming from water। It is also very important long question। अगर हाइड्रोजन की बात की जाए ग्लूकोज में या कार्बन की, तो वो भी जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर दोनों से डिराइव होते हैं। कार्बन इज डिराइव फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन इज डिराइव्ड फ्रॉम वाटर, बट दिस ऑक्सीजन is derived from carbon dioxide, but the oxygen used as released as byproduct is derived from water। So this oxygen is required for respiration। So water is a raw material used in photosynthesis। इसके बगैर जो है वो photosynthesis का मकसद पूरा नहीं होता है। Hydrogen produced by splitting of water reduces NADP positive to NADPH plus hydrogen ion। So ये जो हाइड्रोजन रिलीज होती है ये NADP को रिड्यूस करती है NADPH में। NADP is basically a coenzyme used during photosynthesis, while NADPH2 is called reducing power। इसको रिड्यूसिंग पावर इसलिए कहा जाता है बिकॉज इट हैज द एबिलिटी टू रिड्यूस अदर कंपाउंड्स बाय यूजिंग दीज टू हाइड्रोजन एटम्स। इन दो हाइड्रोजन एटम्स को यूज करते हुए दूसरे मॉलिक्यूल्स को रिड्यूस करने की इसमें पावर है, कैपेसिटी है, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड रिड्यूसिंग पावर ऑफ फोटोसिंथेसिस।